اللہ کی قسم کل میں ایک گھر میں گیا ہوں، وہ بیچاری ماں رو رہی تھی کہ میری بچی کا جہیز گیلا ہو گیا، میں کیا کروں گی؟ جن کی ڈیتھ بچوں کی ہوئی ہے وہ کہہ رہا تھا کفن ہم نے ہدار لیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے تو اس کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ باہر آ جائیں، آپ مکان چھوڑ جائیں، کچھ لوگوں نے تو ہمارے کہنے پہ مکان چھوڑیں لیکن اگلے دن ان کے گھروں میں سامان نہیں تھا۔ کچھ چور ہیں جن کے پاس کشتیاں ہیں، وہ رات کو کشتیوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے سامان اتارتے ہیں، کشتیوں پہ رکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نقل مکانی کر رہے ہیں۔ یہ پانی راوی میں بھی جا سکتا تھا، کیوں نہیں گیا؟ یہ پانی شہری آبادیوں میں کیوں داخل کیا گیا؟ کیا آپ نے کسی اور پروجیکٹس کو بچانا تھا؟ ڈی سی صاحب آئے ہیں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ساری جو آپ کو صفائی ستھرائی نظر آ رہی ہے، جو حکومتی مشینری آج نظر آ رہی ہے نا، تو یہ ڈی سی صاحب کے پروٹوکول کے لیے ہے۔ جی بالکل، آج پھر ایک دفعہ فیروز والا میں ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ رائل سٹی میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ پانی اترنا تو شروع ہو گیا ہے لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی جو ہے یہاں پہ لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں اور اس وقت بھی میرے ساتھ ان کی جو ہے وہ قیادت موجود ہے تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا نام ہے آپ؟ حافظ مدثر گجر، میں تحصیل فیروز والا سے پریزیڈنٹ ہوں جی، JUI کا۔ سر بھائی کیا صورتحال ہے؟ میں دیکھ رہا تھا ابھی بھی ایک بندہ جو ہے وہ پیچھے پانی میں سے آ رہا ہے اور اس کے گردن تک پانی آ رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے کس طرح لوگ وقت گزار رہے ہیں اور آپ ابھی تک لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو لوگ میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ پانی پہلے سے کم ہوا ہے، یہ سراسر بات غلط ہے۔ پانی پہلے سے کم نہیں ہے، بلکہ جو پانی پہلے دن تھا نا آج بھی وہ پانی ویسے کا ویسا ہے۔ یہ تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا اور صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے زمینی راستے منقطع ہو چکے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے 4-4 فٹ 5-5 فٹ 6-6 فٹ پانی ہے۔ اگر ہم بات کریں نا کشتی کی تو مین کے اوپر جو نالا بیڑ ہے نا اس کے قریب بہت ساری کشتیاں ہیں جو مختلف تنظیموں کی ہیں، لیکن وہ کشتیاں تقریباً 22 فٹ کی ہیں۔ وہ تقریباً کشتیوں میں جب چلتے ہیں نا تو وہ کشتی کسی جگہ پر جا کر پھنس جاتی ہے، کوئی بوٹی پھنس گئی، وہ کشتی کا کیپٹن کہتا ہے ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب اس سے آگے جانے کے لیے یہی رضاکار ہیں جو پانی میں اترتے ہیں، پھر ان گھروں تک جاتے ہیں۔ علماء اسلام کیسے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، کیسے ان کو کھانا پرووائڈ کر رہی، اب تک کتنے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر چکے ہیں؟ الحمدللہ آج 7واں روز ہے اور صبح دوپہر شام 3 وقت کا کھانا ہم ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں اور اگر ہم آج تک اندازہ لگائیں نا تو کم از کم 10,000 افراد تک ہم کھانا پہنچا چکے ہیں اور وہ مختلف ایریز ہیں۔ ہم صرف ایک پٹھان کالونی کو فوکس نہ کریں، پٹھان کالونی سے اس طرف ہے وہ بھی علاقہ ڈوبا ہوا ہے، پٹھان کالونی سے اس طرف ہے وہ بھی علاقہ ڈوبا ہوا ہے، پٹھان کالونی سے اس طرف جائیں تو بشیر ٹاؤن ہے، اس کے پیچھے نالے بھیڑ کے اوپر گلشن پنجاب ہے، وہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ باہر آ جائیں، آپ مکان چھوڑ جائیں، آپ یہاں نہ رہیں، کچھ لوگوں نے تو ہمارے کہنے پہ مکان چھوڑیں لیکن اگلے دن ان کے گھروں میں سامان نہیں تھا۔ وہ چوریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اب وہ سامان چوری کیسے ہو رہی ہے؟ آپ اس بات کا یہ اندازہ لگائیں کہ جب میں نے تھوڑی سرچ کی تو پتہ چلا کہ کچھ چور ہیں جن کے پاس کشتیاں ہیں، وہ رات کو کشتیوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے سامان اتارتے ہیں، کشتیوں پہ رکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نقل مکانی کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے نکل کر چور نکل جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ جب گھر آتے ہیں تو ان کا گھر میں کچھ سامان ہے۔ اور جو ہیں سارے مقامی، یہ چور پیچھے علاقے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نارنگ والی سائڈ پہ جائیں اس طرف سے یہ لوگ ہیں، یہ بھی پراپر ایک پورے گروہ ہیں جو یہاں آ کے رہ رہے ہیں اور یہاں آ کے رہتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے سیلاب زدہ آفت میں جو مصیبت میں پریشان لوگ ہیں ہم نے ان کا نجائز فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کے پاس چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، ان کے پاس بزرگ ہیں جو بغیر ویل چیئر کے نہیں چل سکتے۔ اب ان لوگوں کو بھی تو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں جی راشن پہنچائیں، اس وقت ان کو راشن کی ضرورت نہیں ہے، 10 دن ہو گئے لائٹ نہیں ہے، وہ پانی چلائیں نا اگر سولر سے موٹر سے تو نیچے سے گندا پانی آتا ہے، وہ کیسے برتن دھوئیں گے، کیسے کھانا بنائیں گے، وہ کیسے سلنڈر وہاں یوز کریں گے؟ ان کو صرف پکا پکایا کھانا پہنچانا ہے، صاف پانی پہنچانا ہے۔ ہم ایک وقت میں جاتے ہیں، 2 ٹائم ہماری شفٹ ہوتی ہے، صبح میں جاتے ہیں تو شام تک کا کرتے ہیں، شام کو جاتے ہیں تو وہ شام کو اور اگلے دن صبح کا بھی دے آتے ہیں۔ کیا جمعیت علماء اسلام اپنے کاموں سے مطمئن ہے؟ یہاں پہ الحمدللہ بہت مطمئن ہے۔ الحمدللہ تحصیل فیروز والا کی سطح پر ضلع شیخوپورہ سے ہمارے جو اور قائدین حضرات ہیں ہماری کام کو سراہتے ہیں۔ الحمدللہ میں مکمل طور پر الحمدللہ مطمئن ہوں، اس لیے کہ ہم کشتیوں کا سہارا نہیں لے رہے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت جب زمین پہ اترتے ہیں نا تو ہم خود 4-4 فٹ پانی میں چلے جاتے ہیں اور خود جب ہم 4-4 فٹ پانی میں جاتے ہیں نا تو ہم جب دیکھتے ہیں نا، اچھا جو خواتین ہیں نا وہ گھر دور سے دیکھیں گی، وہ پانی میں اترنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، وہ پانی میں نہیں آتی، جو بچے ہیں وہ بھی نہیں اتر سکتے، جو بزرگ ہیں وہ تو آ جاتے ہیں، لیکن اب خواتین تک ہم پہنچنا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پکی سڑکیں نہیں ہیں، کچی گلیاں ہیں، کچی گلی بعض جگہ پہ اونچی ہے، بعض جگہ پہ نیچے ہے، اب یہ سمجھ نہیں آتی کہاں اونچائی ہے کہاں وہ ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھی ہیں وہ پانی میں اترے ہیں، زہریلے جانور انہوں نے دیکھے ہیں، سانپ ان کے قریب سے گزرے ہیں، ہمارے ساتھی زخمی بھی ہیں، لیکن الحمدللہ
खिदमत खलक के जज्बे के साथ चले हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी अजर देगा। सर फिरोज वाला में ऐसे हालात कितने साल बाद देखे आप? ये तो काफ़ी साल बाद हुआ जी ऐसे। मतलब इतना बड़ा सैलाब दोबारा? अब नहीं, बहुत देर बाद मैंने आया। सुना था आज से 20 साल पहले। अब 20 साल पहले आया था, लेकिन अब अब तो भी बंद तोड़ा गया था। हाँ जी, उस वक्त भी बंद, अब भी बंद तोड़ा गया। अब भी बंद तोड़ा हाँ, बंद तोड़ा क्या, क्या बंद तोड़ने से पहले लोगों को इत्तला देनी चाहिए थी कि हम इस तरह के हालात बनाने जा रहे हैं? लोगों को पता नहीं चला, रात के टाइम इन्होंने तोड़ा है। ज्यादती की गई। हाँ, जाती की गई है, सारा इलाका डूबा हुआ है, 6-6, 7-7 फुट पानी है, लोगों के घर मतलब पानी के अंदर हैं, मतलब काफ़ी नुकसान हो रहा है। हुकूमती इकदाम कैसे देखते हैं, क्या काम कर रही है हुकूमत? हुकूमत जो है ना, बस कुछ कर रही है, कुछ नहीं भी कर रही। मतलब ये रोड के ऊपर लगे हुए हैं, बाकी वो भी अपनी अपनी जगह के ऊपर कर रहे हैं काम, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो काम कर रही है। यहाँ पे एक शहरी बात करना चाह रहे हैं जी। सर हमारा ये हुकूमत से मुतालबा है कि जो बेड़ के अंदर जितने भी जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं या जो रैश बनी हुई है, हुकूमत से ये मुतालबा है कि उसको हटाया जाए, बेड़ का रास्ता साफ़ किया जाए। आइंदा जो आने वाला जो अगला जो मौसम आएंगे दोबारा, ये तो मौसम आते रहने हैं, लेकिन जो आने वाला वक्त है ना, वो दोबारा इस तरह का हालात ना पैदा करे। ठीक है, हुकूमत से ये मुतालबा है कि ये सैलाब जो है ना हर साल ही ऐसे ही आता है, मतलब वो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन ये भेड़ का जो बन है ना, ये हर साल ही टूटता है। अच्छा गुजर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि अल्लाह ना करे अगर ये मामला और 4, 5, 6 दिन बढ़ रहता है तो क्या आपकी खिदमत ऐसी रहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खिदमत ऐसी रहेंगी। आपने इंतज़ामिया की बात पूछी है ना, तो मैं उस पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं ना, बिल्कुल पीछे आपको गैब नज़र आ रहा होगा, ये गैब 100 मोरिया पुल का है, मशहूर है। 100 मोरिया पुल क्यों बनाया था अंग्रेज़ ने? उनको पता था ये साथ में नाला है, ये नाला बेड़ आएगा, पानी आएगा तो इन पुलों से गुजरेगा तो आगे चला जाएगा, ये लोगों को कुछ नहीं होगा। अब वो तमाम पुल बंद हैं, उनके इर्द गिर्द ज़मीनें बिक चुकी हैं और वो ज़मीनें मिल मिला के बेची हैं। मेरा सवाल ये है, ये पानी रावी में भी जा सकता था, क्यों नहीं गया? ये पानी शहरी आबादियों में क्यों दाखिल किया गया? क्या आपने किसी और प्रोजेक्ट्स को बचाना था? क्या आपने वहाँ किसी और चीज़ों को जो आप बचा रहे हैं उसको बचाना था? आप इसको रावी में मुंतकिल करते हैं, आपके पास मशीनरी है, आपके पास सादो सामान है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप इसका रुख तो कहीं चेंज कर देते ना। अगर रुख चेंज नहीं किया तो आज भी वक्त है, इन लोगों को आइंदा सालों के लिए बचाएं। यहाँ आबादी बढ़ रही है, ये किस्त वाले लोग हैं जो बेचारे महाना 15, 20, 25 हज़ार रुपये बने बनाए मकान में रह के किस्त देते हैं, ये वो लोग हैं। अल्लाह की कसम, कल मैं एक घर में गया हूँ, वो बेचारी माँ रो रही थी कि मेरी बच्ची का जहेज़ गीला हो गया, मैं क्या करूँगी? तो ये चीज़ें वो हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने कल एक बूढ़े को देखा, वो बेचारा चारपाई पर लेटा था और मक्खियाँ उसके इर्द गिर्द थी, बिजली नहीं है यहाँ पर। अब उन बूढ़े का पुरसाने हाल कौन है? ये पानी उतर जाएगा, जो बीमारियाँ होंगी उनका कौन करेगा? सूरत में बिजली ऑन कर देते हैं, कोई जानी नुकसान भी तो हो सकता है। जानी नुकसान हो सकता है, लेकिन वापटा यहाँ से मुसलसल 3-4 दिन से फिर रही है, कुछ इलाकों में उन्होंने बिजली ऑन की है। मैं ये समझता हूँ कि वापटा को इस सैलाब से पहले बार बार खबरदार किया गया कि बिजली की तारें ज़मीन पर हैं, इन्हें उठाएं, पोल लगाएं, ऊपर ले जाएं, क्यों नहीं कर रहे? इनको चाहिए था ना कि पोल लगा के ऊपर लेके जाते। अब वो सूरत हाल दोबारा चालू करें कि वही सिचुएशन में वापडा बिजली ऑन करेगा। अब दोबारा मैंने कुछ जगहों पे देखा जहाँ वापटा ने ऑन किया ना, वहाँ पानी की तारें गुजर तो रही हैं लेकिन वहाँ ऑन है। मैं वहाँ वापटा वाले आज मुझे मिले थे, मैंने उनसे कहा कि भाई आप बिजली बंद करें, पहले तारों को कम से कम ऊपर लेके जाएं ताकि कोई बच्चों का ये नुकसान हो। अब तक अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो कुछ भी नहीं, तो मेरा ख्याल है अब तक 6 से 7 बच्चे यहाँ फौत हो चुके हैं। अब उनका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। ये सामने जो आप पानी देख रहे हैं तो यहाँ हमारा घर है। तो सुबह जब हम उठे तकरीबन इतवार के दिन, तो 11 बजे 12 बजे तो आसपास पानी पानी था। तो कोई ऐलान किसी ने नहीं किया, किसी को कुछ पता नहीं, और लोग जब सुबह उठे तो घर के इर्द गिर्द सारा पानी था। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि हुकूमत ने पहले भी यहाँ काम नहीं किए हैं। अगर पहले यहाँ बिजली के काम किए हो, कोई गलियाँ बनाई हो, कोई और परेशानी हो, तो शायद ये हालत ना होती। और दूसरी बात है कि अब काम करने का, अभी तक हमारे पास इस इलाके में मैंने नहीं देखा कि हुकूमत के कोई लोग आए हो, उन्होंने कोई काम किया हो, कोई नहीं आया। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे हैं, एनडीएमए के लोग यहाँ पे हैं, पीडीएमए के लोग यहाँ पे हैं, वासा के लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं, रोड पे गुजर खाने के हवाले से भी कोई नहीं आया। नहीं पहुँचाया। और दूसरी बात है, कल आए थे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नबूवत वाले, उन्होंने माशाअल्लाह घर तक खाना पहुँचाया। आज जमीयत के हमारे फिरोज़ वाला के मुदस्सिर साहब है। तो दूसरी कह रहे हैं हम 7 दिन से यहाँ काम नहीं, इलाका इतना बड़ा है कि कहाँ कहाँ तक खाना पहुँचाएंगे। मैंने खुद इनकी वीडियो देखी, ऐसी मुश्किल से उन्होंने खाना पहुँचाया कि यकीनन वहाँ हम नहीं जा सकते, हालांकि मुझे तैरना आता है। दूसरी बात यह है कि अब ये पानी कड़ा है। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त ये है कि उन्होंने आसपास मिट्टी डाल दी, तो पानी कहाँ जाएगा?
हमारी गली के कोने पे मिट्टी किसने डाली है, कहते हुकूमती बंदे आए थे। आगे जाके पाटा के पास डीसी साहब के लिए ये सारा काम हुआ है। डीसी साहब आए हैं आज अभी थोड़ी देर पहले। ये सारी जो आपको सफाई सुथराई नज़र आ रही है, जो हुकूमती मशीनरी आज नज़र आ रही है ना, तो ये डीसी साहब के प्रोटोकॉल के लिए है। इससे पहले हमारे पास कोई आदमी नहीं है। आपका कहना है कि सरकारी अफसर कोई आता है तो उससे पहले जो है मशीनरी एक्टिव हो जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह से सरकारी मशीनरी इधर 1500 वासा के मुलाजम इधर तैनात किए गए हैं, और जो पुलिस वाले हजरात हैं वो भी उनके साथ तैनात किए गए हैं। मतलब कि एक सरकारी आदमी को जो है ना प्रोटोकॉल के लिए ये सारा काम किया गया है। सरकारी आदमी के प्रोटोकॉल के लिए काम किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे मुकामी सहाफ़ी इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आप ज़रा इधर मेरे पास आएँ। इमरान से पूछते हैं कि ये हक़ाइक़ पे मबनी वो बातें बताएं जो इन लोगों के साथ मसाइल पेश आ रहे हैं। क्या कोई सरकारी लोग यहाँ पे आमदरफ्त तो हम देख रहे हैं, क्या कोई काम भी कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ इंतज़ामिया इतनी खरगोश की तरह सोई हुई है, मैं आपको क्या बताऊँ। इंतज़ामिया को चाहिए, हर साल फ्लड आता है, ये बारिश का इतना बहाव बढ़ जाता है, इनको चाहिए कहीं और फेंकना चाहिए पानी, यहाँ फेंक देते हैं। यहाँ मुतासर इतने लोग हो चुके हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। जो मुदस्सर भाई ने ये बात की ना, ये चोरी वगैरह, जहेद वगैरह, वो लड़कियों का, अल्लाह की कसम खा कहता हूँ मैं, एक ये भी बात कहने लगा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो जो जिनकी डेथ बच्चों की हुई है, वो कह रहा था कफन हमने 1000 लिया है। अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो कह रहा था, वो मैं मस्जिद से लिया था कफन, वो कह रहा था कारी साहब लेंगे, ठीक है दे देंगे, वो नहीं लेंगे तो फिर लोगों के पास कफन के पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाने के लिए कह रहे हमारे पास कुछ कोई भी नहीं आया। अब आए हैं ACDC, कल कैंप लगा हुआ था वो मेडिकल का, ठीक है, वह हमको वहाँ गए थे विजिट का प्रोग्राम करने के लिए, कल भी गए थे, लेकिन लिहाजा इनको खुदारा सोचना चाहिए, इस तरह करना नहीं चाहिए था जिस तरह ये कर रहे हैं। ये सारी इंतज़ामिया जो बहुत ज़्यादा खामोश बैठी हुई है। मैं बिल्कुल मुदस्सर गुज्जर साहब आपसे आखिरी बात पूछूंगा कि अगर आप समझें कि मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर आला आपको देख रही हैं, तो आप इन चोरों के बारे में क्या तफसीलात बताएं? मुझे कुछ दिन पता चला पहले कि CM साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं। दुख ये है कि उस बात को 3 दिन गुजर के वो नहीं है। अब वो किसको भेज रही हैं? कमिश्नर। किसको भेज रही हैं? डिप्टी कमिश्नर। किसको भेज रही हैं? AC। कल की बात है, हमारे मौजूदा AC को सिर्फ इस वजह से मुअत्तल कर दिया गया, AC फ़िरोज़ वाला को, कि वो काम नहीं कर रहे। कि इन लोगों को मेन सड़कें मिलनी चाहिए, गलियों के अंदर पुख्ता सड़कें मिलनी चाहिए। नंबर 2, इन लोगों के लिए वापटा का निज़ाम एक बेहतरीन होना चाहिए। और नंबर 3, जब सड़क बनेगी तो सीवेज का निज़ाम होगा। अब ये चीज़ें नहीं है, नाला बेड़ करीब है, इनको तो मसला ही नहीं है कि यहाँ से रावी में डालना, ये 1 किलोमीटर नाला बेड़ नहीं है, सीवेज सारा वहाँ डल सकता है। ये क्यों नहीं कर रहे? दुख और अफसोस ये है कि छोटे लोग बड़े लोगों को अजीब अजीब चीज़ें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया। यकीन माने, हम जैसे लोगों का पानी में उतर करना और गंदे पानी में इस तरह उतरना, पानी बदबूदार हो चुके हैं। आप जाएँ ना तो ये पानी स्मेल वाला है, अगर हम फ़ौरन निकल के ना नहाएं तो हमें खुद मसला हो जाता है। ये क्यों नहीं ऐसा करें, खुद आएँ। बिल्कुल, यहाँ के जो है बुज़ुर्गों ने और जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों ने, मुकामी सहाफ़ी ने जो चीज़ें बताई हैं कि लोग अब भी मोहतरमा मरियम नवाज़ के मुंतज़िर हैं कि शायद वो यहाँ पे आएंगी तो काम की रफ्तार बढ़ जाएगी और मामले का हल निकाला जाएगा। अब देखना ये है कि मोहतरमा कब यहाँ आती हैं और इनके मामलात को हल करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए तो सड़कों का निज़ाम बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। वापडा जो है वो बाकायदा 6 दिन से मुनक़ता कर दी गई है बिजली। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।